جی پرویز بھائی، اگر آپ آ سکے تو آ جائیے انشاءاللہ. یہ لنک ہے، یہ لنک پر کلک کر کے آ سکتے ہیں. یہ لنک آپ کو دکھ رہی ہے، اس پر کلک کر کے آپ آ جائیے. کیا ہوا، ہو رہا ہی نہیں ہے کیا؟ لنک پر آپ کلک کر کے آ جائیے آپ. السلام علیکم پرویز بھائی، خیریت سے آپ؟ جی جی، وعلیکم السلام میاں، جی وعلیکم جی، السلام. آپ انشاءاللہ آپ کی جو بات رکھنی ہے آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں. یہ ہمارا ہی چینل ہے. اور وہ جو جی لوگ جس طرح سے بدتمیزی کر رہے تھے، تو اخلاق پر آج ہماری بات ہو جائے. آج جس طرح سے اخلاق ہونے چاہیے لوگوں کے، اس پر انشاءاللہ جی، آپ بات رکھ دیجیے تھوڑی. ٹھیک ہے. میں ایک ہی ہوں اس میں یا پھر اور کوئی ہے جوائن ہونے والے؟ نہیں، آپ ہی ہے. ابھی تھوڑا بزی ہے، فرسٹ ڈے ہے نا، تو انشاءاللہ فرسٹ جی ڈے ہے. اور کل عرس مبارک تھا، جی. تو ماشاء اللہ. جی میں بولیے پرویز آپ بھائی. آپ آلریڈی دیکھے ہوئے لاسٹ ویک جو ہے اسٹریم میں جو بھی دیکھنے والے تھے سب کو سمجھ میں آ گئی بات اس میں کہ لوگ جو ہے گودی میڈیا کو فالو کر رہے ہیں. فتنہ جو مچانے کے لیے جو فارمولا ہے وہی فارمولے کو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. خیر ان کا معاملہ ہے اور میں مرشد نہیں ہوں. اب یہ ہمارے پیر کا اثر ہے، ان کا جو ہے پسکودے کا اثر ہے، ان کی ختموں کی دور ہے. جو ویسا انہوں سوچ لے رہے ہمارے بارے میں، مگر میں ایک پالیٹیشین آدمی ہوں، لیڈر آدمی ہوں. الیکشنز وغیرہ کھڑے ہوا، ایک خدمت خلق میں رہتے ہوا اور گورنمنٹ میں آنا جانا ہے میرا. لگ بھگ خدمت خلق میں میرا ایک بڑا یقین ہے. تو وہ اندازے پر جو ہے وہ لوگ کچھ بھی بول دے رہے، مسئلہ نہیں ہے. ان کا پیشہ ہے، وہ پیشہ چلانے کے لیے دیکھے ہوں گے آپ ٹی وی چینلوں پر پرائم چلانے والے اس انداز میں کام کرنے والے کا جو جی طریقہ ہے جی اس جی جی طریقے سے جی، جاتا یعنی ہے مسئلہ. گودی میڈیا کی جیسا آپ بتانا ہاں چاہ رہے ہیں. ہاں، کاپی پیسٹ ہے. وہ کیا ہے، کیا کاپی اور پیسٹ آپ کرے وہ. ایک بات اور دیکھیں گے کہ ان کے اخلاق دیکھیے آپ کس طرح سے لفاظی یہ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سے وہاں پر بات کرنے کا ہونا تھا. اور آپ کی ماشاءاللہ جب آپ اسٹریم میں گئے تو ماشاءاللہ آپ وہاں پر آپ کے چہرہ الگ ہی نظر آ رہا تھا. لیکن ان لوگوں کے چہرہ کا معاملہ ہی الگ تھا، کیونکہ نہ ان کے طرف امامہ ہے اور بات کرنے میں وہ اخلاق نہیں نظر آ رہے ہیں. ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے کہ بھائی آپ قرآن شریف کی بات کر رہے ہو، قرآن کی بات کر رہے ہو، اللہ کے کلام کی بات کر رہے ہو، اور آپ لہجہ جو ہے آپ کا وہ کس طرح سے ہے. جی صحیح بات. نہیں، وہ ان کو نہیں معلوم دین کو جو ہے سمجھے نہیں. انہوں بیسک جو باتیں ہیں دین کی وہ سمجھے نہیں، اور دین کی ضرورت انسان کو کیا واسطے ہونا ہے وہ بھی نہیں معلوم. انہوں کیا ہے، کنفیوز ہو گئے. ان کی علم کو لے کو کنفیوز ہو گئے، ان کی سوچ کو لے کو انہوں کنفیوژن میں ہے. اب وہ آپ دیکھیں گا ایک پاگل کتا رہتا ہے، اس کو کچھ اندازہ نہیں رہتا کہاں جانا ہے اور کون مالک ہے اور کیا کرنا ہے. تو انہیں کیا کر سکتا بولو. ایک رف ورڈ ہے جی یہ، مگر کتا وغیرہ استعمال آیا سے مذہب میں ہمارے وہاں قرآن میں بھی بیان ہے. اس کو رف نہ لے، نفس کو رف جی لگ سکتا ہو، مگر حقیقت اس کی یہ ہے کہ بھائی کتے کی جو اچھا کتا جو ہے کچھ الگ صفات رہتے ہیں اس کی. یہ جی دیوانہ کتا ہے،
जी दीवाने कुत्ते के साथ में इंडिया में खास करके क्या करते हैं वो आपको मालूम है, मगर यहाँ जी। इंसान की शक्ल में ही तो इनके साथ में वो और रवैया नहीं कर सकते हमें। परवेज भाई एक और बात रखेंगे, एक और बात ये करनी है कि भाई अगर आप किसी को दावत दे के बुला रहे हैं तो मेहमानों हम्म, के साथ हर जगह पे बहुत बेहतरीन सुलूक होता है। लेकिन ये लोग क्या हम्म, कर रहे हैं कि आवाजें बंद कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे, कहीं प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बड़ा मतलब कि अलग ही लहजे में कर रहे हैं। और कहते क्या है परवेज भाई कि भाई हमें किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है पूरी। यानी आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए ये किसी बड़ी शख्सियत के बारे में, जो आज अगर दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत के बारे में ये बात करे और बिना पढ़े अगर बात रखे तो कैसा लगेगा। और जी। आप हमारे बारे में, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में आप बात रख रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमने पढ़े नहीं। ये कितनी ज्यादा मजाकिया बात है आपके साथ। जी परवेज भाई। शरारत है, अब शरारत के लिए जितनी तैयारी करना हो ना उतनी तैयारी कर को बात कर रहे हो। जी जी जी। ये इसी तरह की चीजें है कि भाई जो चेहरा, जो चीज चाहिए थी कि हमारे लोगों जी। को हम कह रहे हैं कि भाई अपनी स्ट्रीम्स में आके बोलिए, वो लोग आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा का निशाना बना रहे हैं। आप अगर जा रहे हैं तो आपके प्रोपेगेंडा का निशाना बना रहा है, आपको आपकी बात नहीं रखने रख दे रहे, आपके जज्बात को नहीं रख रहे हैं, आपके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, आपको बात तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, और कितने आपको स्क्रीन भी नहीं देने वाले। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं कि आप लोग आए और उनको, मतलब उनको एक मौका दें। तो हम हमारा भी यही कहना है कि भाई हमारे स्ट्रीमों में हम अपनी बात रख सकते हैं। और वो जो लोग हैं उनका हैरत हो रही है मुझे कि वो अपने आप अपने नाम, हम लोग नाम की वजह से कंफ्यूज है। हम सोच रहे थे कि भाई कि कुछ भी हो तो आखिर में मुसलमान है तो हमारी बातों की वो रख लेंगे, हम लोग वो करेंगे, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठी तरीके से बात को पेश कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है। तो ये झूठी बात भी कर रहे हैं और कज़ाबियत जो बोल रहे हैं, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि झूठ बोलने का, लेकिन जो खुद कज़ाबियत कर रहे हैं, खुद कज़ाब वाले हरकतें कर नहीं, रहे हैं ये लोग। आप पुराने वाक़यों में पढ़े होंगे, जो हम होती हैं वो दिखती हैं हमें। जी आप देखे होंगे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आके बोल रहा है बहुत अच्छा है और कोई आके बोल रहा है बहुत बुरा है, तो अबू बकर जी सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछ रहे हैं कि भाई कि ये क्या माजरा है हजरत, बोले तो उन्होंने बोले उन्हें वो है उसको वैसा दिखा है, इन्हें ये है जिसकी वजह से वो दिखा, आपको अच्छे दिख रहे क्योंकि आप अच्छे हैं। हम्म वो बदतरीन जो है रवैया है वो दीन में, तो उसका हम्म कुछ कंसल्टिस नहीं है। उन्होंने जो रवैया इख्तियार करे ना अल्लाह के रसूल ऐसा हम्म बताए, ना सहाबा करम हम्म बताए, ना अल्लाह ताला हम्म खुद रहमान और रहीम है, उन्हें भी हम्म। ऐसे तरीका बताया नहीं कि भाई तुम जब बात करो तो ऐसा करो। और आप देखे एक और होंगे बात हुई है कुरान परवेज शरीफ। भाई, एक और बात ये जी। हुई है कि माशाल्लाह आप इस स्ट्रीम की वजह से, वो चाह रहे थे गलत जी। करना, लेकिन आप तक वो महदियत को पहचानने वालों के भी फोन आ गए। हमको वो बड़ी हैरत हुई कि आपने जो नहीं, ऑडियो भेजे माशाल्लाह। फिलहाल फिलहाल पूरे वर्ल्ड में इस्लाम, आलम जी इस्लाम में अगर कोई इश्यू जी है, अगर कोई सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जी तहकीक हो रही है, तो वो है जी इमाम महदी। जी इमाम महदी जिस वजह से जी ये उलमा चाहे कितनी भी बंदिश लगाओ, कितनी भी चादरें इनके ऊपर उड़ाओ अवाम के ऊपर, रोक नहीं सकते। जी जब हक की जी जी तलब जी। बंदों में, हक की तलब जब अब बंदे में आ जाती तो उसको नहीं रोक जी सकते। और रही अब बात, ऐसे ही 5-6 साल से सर्च करने वाला एक बंदा ईमान जो है मेरे कुछ गवाह मान के मोबाइल पे गवाही दे दिया। हाँ, तो चाह रहे थे फितना हो रहा है, फायदा कुछ अल्लाह के बंदों का इसके जरिए भी, ऐसी भी अल्लाह ताला हिकमत से काम लेता लिया है। और एक बात क्या है, आलम इस्लाम में जो तहकीकात चल रहे, उस तहकीकात के बाद जिसको अल्लाह पसंद करता, जो हलाल खोर हैं, यानी जो हलाल का लुक़मा उठा लें, उन्होंने 100% जो है, जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी हैं, जो गुजरे इंडिया से अफगानिस्तान गए 500 साल पहले, तारीखी शख्सियत है ये ज़ात। हमारी कौम फिलहाल जो है मेहदी माऊद इनोच हैं बोल के दिलो जान से रूह से मानती और इसकी जी गवाही देती। और हम ये गवाही जी देते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल जो वायदा करे मेहदी माऊद जी आएंगे, मेरे बाद जी आएंगे, ऐसा होंगे वगैरह जो भी है, वो पूरे वायदे, पूरे पेशन गोयां सच हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम का वायदा पूरा हुआ है। ये वायदा पूरा होने की गवाही हम 500 साल से बढ़कर देते आ रहे हैं, नस्ल ब नस्ल देते आ रहे हैं। आलम जी इस्लाम जी में ये उम्मत में हमारी कौम एक ऐसी कौम है जो मुसलसल महफिलों में और मस्जिदों में और बादशाहों की महफिलों में, अब सेकुलर मुल्कों में, हर दौर में, हर अवाम में जो है बात अपनी सफाई के साथ में रखी हुई और है। और ये आई+ वाले पहली बार जो है जी सवाल नहीं उठाए ये हमारे कौम के ऊपर, इन्होंने बहुत बड़ा उम्मत में पहला काम नहीं करे। ये पहले जी चैनल वाले हैं जो हमारे ऊपर उंगलियां उठे, ऐसा नहीं है।
जी जी 500 साल से 500 नमूने ऐसे गुजर गए। अकबर का और और हजरत शेख मुस्तफा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का तो वो वाकया जो है इन्होंने शायद पढ़े नहीं है, ये लोग मतलब बिना पढ़े ही वो कर रहे हैं, इतना मतलब हमारे यहाँ मशहूर है अकबर का दरबार नहीं, का बहुत मशहूर वो है। जी आप अकबर का जो वाक़या है वो तो है ही, हक़ है। जी आप जी जो है सिर्फ जौनपुर की हिस्ट्री अगर पढ़ लिए, जिस जी वक्त हजरत वहाँ पर मौजूद थे, उस दौरान जी जो है वो एक इस्लामिक कंट्री था, जहाँ पर जी जी काजी का हुक्म चलता था। जी और इन्हों खुद जो है, सिर्फ आप आजकल तो एआई भी आ गया तो नॉर्मल सब जने सर्च कर रहे हैं, उसमें ऐसा आप इतना पूछो कि सैयद हम्म मोहम्मद जौनपुर से जो निकले, हम्म उनसे क्या फ़ायदा हुआ आलम इस्लाम को, या उनकी हम्म जो मेहनत थी उससे क्या फ़ायदा हुआ, आप पूछे तो वो तफसील में बोलेंगा, तारीख की हम्म किताबों के साथ में बताएंगा। नहीं तो जानने के लिए नहीं तो तहकीक परवेज करने भाई, बिल्कुल आसान नहीं है, मगर परवेज भाई, सच्चे नहीं नियत होना। पर परवेज भाई आप जो बात कर रहे हैं ना कि भाई ये पढ़ने होना, ये जो बात कर रहे हैं ना वो अनपढ़ वो लोग मतलब जहालत की हद प्यार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्ट्रीम में कि भाई हमने पढ़े नहीं है। अब खुद सोचिए ना, मैंने कितने बार उनसे बुलवाया हो, वो कह रहा हूँ मैंने पढ़ा नहीं हूँ, नहीं, मैंने पढ़ा नहीं हूँ। और कह रहे हैं कि भाई मियाँ, किसी पे इल्जाम लगाने के लिए पूरा पढ़ना जरूरी है, मतलब कितनी जहालत वाली बात है कि किसी भी, अब जैसा कि कुरान शरीफ में आता है सूरह बकरा में कि जालिकल किताबुल ला रही बफी हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो किताब जी, है वो मुत्तकी और परहेजगारों के लिए हिदायत का जरिया है। अब मैंने क्यों वहां पे कुरान और हदीस से बात नहीं किया, क्यों मुझे मालूम है ये मुत्तकी और परहेजगार लोग नहीं है। अगर ये मुत्तकी और परहेजगार लोग होते तो इनकी जबानों से पहले झलकता। सही बात, हक बात, आप सही बता दें मियाँ, बिल्कुल सही है। अगर अब कुरान वो से बात करनी है तो जी एक्चुअल वो लोगों को देखने के बाद समझ में आ जाता है, उनके अंदाज को देखते ही ये सब जाहिला हैं बोल के। कुरान का हुक्म तो जब तुम्हारा जो है सामना जाहिलों से हो तो किनारा करो सलाम के साथ, साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमा दिया सो है। जी 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 मगर बात अब बात ये हुई बात ये भी हमें वहाँ जो है बोलने की वजह ये रही कि कोई अचानक एंट्री मिल गई थी, तो वो जी इत्तेफाकन हो गया। और माशाल्लाह वो जो फिर अब जो जज्बात मैं में स्ट्रीम आपने बात रखी अपनी। इंशाल्लाह आज, हाँ, जज्बा था, वो ईमान का जज्बा हाँ था, ये तो दूसरा हमारी कोई नहीं। प्रैक्टिस अब स्ट्रीम है ना, ये तो प्रैक्टिस स्ट्रीम है माशाल्लाह। नहीं, प्रैक्टिस स्ट्रीम अपनी जगह है मियाँ, आप कौम को इसकी ज़रूरत भी है। जी जो कौम जो है वक्त के टेक्नोलॉजी या वक्त के जो बेहतरीन वक्त के चीज़ें हिसाब अल्लाह से ताला नहीं ने डलती, जो नेमत, जो हाँ, ग्रो हाँ, हाँ, ग्रो में भी जो हाँ। भी अल्लाह, हाँ, जो है दौरे मेहदी है, इसके जो है हकदार हम हैं। इमामना की हम्म, तस्दीक करते, इमामना के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह जो है सब खोल दे रहा है, और ज़मीन क़यामत के खुद जो है ज़मीन उगल देगी बोले तो ये उगल रही, सोच नियामतें हैं बहुत सारे, इसके सही हम्म, तरीके से हम्म, फ़ायदे लेना, हमारी कौम भी लेना, इंशाल्लाह लेती भी कौम भी हमारी। जी और स्ट्रीम पे आप और चलाइए कौम से, हमारे जी जो देखिए हमारे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है कौम की, मालूम आज की डेट में अहले हम्म, बैत के वारिस हमारे पास जी सीना ब सीना डिक्टू पेश मौजूद हैं। और जी बगैर तनख्वाह के ये चंदा खो साले, खैर वो अल्लाह माफ़ करे, मैं एक दीनदार जी बात जी जब करूँ तो मैं नफसी बात भी नहीं करना, तो क्या जी है जी हमारे पास कौम में एक ख़ानदान जो चलने को है, बाप दादा अगर ईमानदार हैं, बाप दादा अगर जी हक पर हैं, बाप दादा जी अगर सही दीन पर हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के दीन पर हैं, तो फिर बाप दादा का फॉलो करने में क्या हर्ज है। जी जी ये लोग नहीं उसको परवेज गलत भाई, मतलब बोल रहे एक और बात मुझे ये बताइए कि ये जो शजरा शजरा कर रहा है, अगर इन लोगों के चारों का भी शजरा पूछ लिया जाए, चारों छोड़िए पूरे आई प्लस की मौलवियों का पूछ हैं। लिया जाए, नहीं, मैं नहीं, पूछ वैसा लिया नहीं था एक है। बार, ये खुद बता पाएंगे ये लोग, ये खुद बता पाएंगे। नहीं, वो शजरा तो छोड़ो, मैं एक से बात हो रही थी मेरी आज, मैं उनको सुना रहा था, जी भाई आपके जी बाप का नाम क्या है, जी तो बोलने तैयार नहीं। मैं बोला ईमान वाले अरे अपने बाप का नाम नहीं छुपाते। जी हाँ, तो आप जो है अब्बा का अगर नाम नहीं छुपा रहे हैं बता रहे, आपकी, हाँ, अब्बा अपनी का नाम नफ्स नहीं की बता। अगर, हाँ, आपकी नफ्स जो है आपको जी अपने बाप के नाम छुपाने पर मजबूर कर रही, तो आपका समझो क्या है कैफियत, बिल्कुल मैं जवाब दिया हूँ। जी 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 और परवेज भाई एक और बात थी कि देखिए इनकी किताबें है, एक किताब है उसामुल हरमैन, एक किताब है जिन इनके बारे में, तक़वियतुल ईमान है, सिरात मुस्तकीम है, किताबुत तौहीद है, उसके बाद हम्फ्रे की एक बुक है, इसी पांच छह बुकें हैं जो मेरे को जो मैं पढ़ा हूँ। मैं इस पर सवाल करूँ तो मैं बोल रहा था पहले कि भाई आप अपनी किताबें बताइए, हम हमारा जो सवाल करने का मकसद है कि पहले आप अपना तो बताइए ना, आप हमारे हमें गलत बोल रहे हैं ना, ठीक है अभी 2 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम वो बात अलग रखते हैं, पहले अपना तो बताइए। ये जो सिराती मुस्तकीम और तक़वियतुल ईमान में शाह इस्माइल साहब ने, आपके शाह इस्माइल साहब ने जो लिखी है उस पर भी बात हो जाए। शाह इस्माइल साहब जो थे शाह वलीउल्लाह के पोते थे, उन पर भी बात हो जाए कि शाह इस्माइल साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी हिंदुस्तान की, आपके बड़े इमाम थे, उन्होंने क्या जो लिखा है। तो आप जो हमारी बात कर रहे हैं तो हमारे को तो तुम अपने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हटाइए अभी बीच में से, अब अपना तो नहीं, साबित कीजिए। मैं एक जी छोटी बात में इसको जो है समझता हूँ, मेरी जगह मैं ऐसा समझता हूँ कि अल्लाह ताला बुतों को लेकर भी जो है बदगोई करने की इजाज़त नहीं दिया।
रसूल जी भी नहीं करे, जी। सहाबा कराम भी नहीं करे, और जी हमें उनकी इत्तिबा करनी नहीं, तो हमें भी नहीं करना। लेकिन उन्होंने उनका एक ये मसला, लोग तो इस्लाम महदवियत पे ही मतलब वो कर रहे हैं, यानी ये तो इतनी बेसिक चीज पर भी नहीं, समझ नहीं पा रहे। उन्हों जो है अंधे हैं, वो गूंगे बहरे हैं, उनका कुछ हो नहीं सकता, मगर उनके लेवल जी। पर हम नहीं उतर सकते, हम जो है और परवेज भाई उनके ये लेवल पे नहीं उतर सकते। मुर्शिदीन के वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं, इनके आलिमों ने जो उल्टी सीधी बातें की है हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में, हुजूर के बारे में, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में, क्या क्या फालतू बात की इनके आलिमों ने। ये एक हैदराबाद के है, एक शख्स है इनके, अच्छे आलिम है, क्या बोलते तो मिराज रब्बानी करके, उन्होंने बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बात की है। उसके वीडियो हम चलाए जी तो हमारे पास दुनिया भर के वीडियो है कि भाई कितने बदतरीन वो करते हैं। यानी अभी जो मिलादुन नबी आती है, मिलादुन नबी के बारे में जब बोलने पर आती है तो इतनी नीचे गिर जाते हैं कि क्या बताए। ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, जिसे सारी दुनिया मानती है कि इमाम हुसैन का कातिल है, लेकिन उसे रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। यजीद जैसे शख्स को कि जो दमिश्क के दरबार में बैठा था, उस शख्स को भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। तो देखिए कैसे लोग हैं ये कहते हैं कि यजीद ने कत्ल नहीं किया। वो शख्स क्या था इस्लाम में, उसका क्या हैसियत है कि भाई उसने क्या ऐसा कर दिया कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे जो है कोई एक दीनदार भाई मेरे को बोले ये सब शैतान के चेले हैं, इनसे जो है कुछ नहीं हो सकता, और आप देखो उनकी सोबत में ना अल्लाह याद आता, ना अल्लाह का खौफ पैदा होता, ना अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती दिल में। ये इतना काफ़ी है, वो लोगों की जी सोबत का असर से इंसान की ज़ात जो है ज़ाहिर हो जाती है उसमें, महसूस करने जी वालों को। जी जी। हलाल खोरी बहुत ज़रूरी है इसमें, हम्म। हराम खोरों को नहीं समझ में आता। अब जैसे कि आप कुरान शरीफ से शुरू में सुना दिए, ज़ालिकल जी किताबुल ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन, मुत्तकिन ये जी। किताब है, ये किताब है मुत्तकियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली, हिदायत देने वाली, यकीनन जी हक है, मुत्तकी अमल और सच है। परहेजगारी के लिए ना। अब परवेज भाई बिल्कुल। अगर कोई जो जो कुरान पे ईमान ना लाए, जो नहीं, सैयदुल अंबिया ये पर चंदा सैयदुल चंदा जी चंदाखोर हैं, चंदाखोर हैं पेशे, जो है इनको कोई कमेटियां रख रहे नहीं, इनके इनके बद अखलाक की वजह से कहीं भी कमेटियां में इमामत करके तनख्वाह देने कोई तैयार नहीं है, ये लोग आ गए। अब हमें भी उनके वास्ते बदगुमान करने का न, मेरा मानना ये है भाई, हमें हम जो है एक जो हक इमामना और जो परवेज गुजरे, भाई ये हक खुद भी इमाम। नहीं जाते। ये खुद भी दूसरे स्ट्रीमों पे नहीं जाते। ये दूसरे स्ट्रीमों पे नहीं जाते। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरी स्ट्रीमों में जाके जवाब दे, क्योंकि पता है जिसके आप हाथ उस में दिन, कंट्रोल होगा। अब जैसा हमारे हाथ में कंट्रोल है तो हम जिसे चाहे ऐड कर सकते हैं, जिसे चाहे रिमूव कर सकते हैं। तो लेकिन हम सही लोग बात, बड़े इखलाक वाले हैं। अगर हमारा भी चैनल रहेगा तो हम लोग फिर भी रखेंगे आपको, हमारा ऐसा नहीं है कि हम वो करेंगे। लेकिन आप बदइखलाकी कर दिए आपने दुनिया के सामने। दुनिया के सामने जिस तरह से माइका बंद कर रहे हैं, जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये इखलाक नहीं है। ये इस्लाम ने किसी तरह से नहीं सिखाया। आप लोगों के चेहरों पे समझ में आ रहा है, आप लोगों के चेहरे देख के समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आपने ढोंग किया है, इसका ये मतलब होता है कि भाई आप लोग ये समझ नहीं रहे। आप लोग जो बातें कर रहे हो आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते। इखलाक जो है बड़ी चीज है। कुरान मजीद की जो बात करने की आप बात कर रहे हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आपके दिलों में नहीं है, सैयदुल अंबिया खातिमुन नबीन हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर आप में दिल में मोहब्बत नहीं है तो कुरान शरीफ कैसा होता? फिर कुरान शरीफ है जब सैयदुल अंबिया की मोहब्बत आपके दिल में है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इमाम हुसैन के नाना की मोहब्बत जब दिल में है, जब जाके बात होंगी कुरान से। जी सही है, सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी, हक बात। इस तरह की बात थी नहीं, माशाल्लाह। जी आप जब अगर आप जाए तो इनको ये बताइए कि हमने स्ट्रीम किया है करके, इंशाल्लाह वो स्ट्रीम आप देखिए करके। हमने बहुत सारे, आप यहाँ पे जवाब रख दीजिए इंशाल्लाह वो, क्योंकि वो दे ना दे वो अलग बात है, नहीं, लेकिन आप यहाँ पर जवाब रख सकते हो उनको। मैं जो है उनसे स्ट्रीम पे बोल देता हूँ, इस वास्ते कि हो सकता है ये कुछ लोग देखे कुछ लोग ना देखे, किसी को पहुंचे ना पहुंचे, नहीं नहीं, हम वो तो वहाँ जो है पर कमेंट में डाल देंगे, हम कमेंट में डाल देंगे। कमेंट में डाल देंगे। बढ़वा। आप यहाँ पर उनको मतलब यहाँ पर भी बोल सकते हो, वहां पर भी बोल सकते हो, दोनों जगह बोल सकते हैं। आपकी स्ट्रीम है, ये हमारा चैनल है, आप जो बोलना है बोलिए। यहाँ पे बदइखलाकी नहीं होती, हम लोग बदतमीज लोग नहीं, नहीं है। जी बिल्कुल ऑनलाइन जो है स्ट्रीम हमारे भी खौम से आप जो है चलाइए, फिर कोई चलाए, सब मेहनत करेंगे माशाल्लाह। उसमें क्या है, ये अमल तो इसमें नहीं है, ये मामला अमल से यहाँ जो है दिखा नहीं सकते आप। लाइव जो है इल्मी बात करना है, वही क्लैरिटी जो जहन को असर करने की नीयत से उन्हें वसवसे फैला रही, फितना फैलाने वाले जी। जहन को फोकस करते हैं लोग। तो हमें भी हम्म। जहन कुछ फोकस करते हैं, हमारी कौम के जो कुछ नौजवान जो हाइब्रिड चिकन वगैरह खा के बढ़ रही, हमारे पास भी है ना कौम में, दुनिया सब तरफ जी फैली हुई जी है। जी तो वो हिसाब से हमें भी कोशिश, देखिए जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जी अल्लाह जिसको हिदायत देना है दे देता है, और ऑलरेडी हमारे पास पूरा लिटरेचर है और ऑनलाइन आ गया, वेबसाइट्स हैं,
ऐप भी बन गया परसों माशाल्लाह, और हमारे पास जो है मस्जिदें खुला खुला, मतलब हम खुले हुए हैं, हम वजूद में हैं, आप और कोई बीजापुर के बारे में जो ऐसे बता काम। रहे थे, बीजापुर बीजापुर के बारे में थोड़ा बताइए। आप बीजापुर में किस तरह से महज हुई थी और क्या था, वो थोड़ा बताइए आप यहाँ पर लोगों के लिए। बीजापुर की तारीख जो है बहुत बेहतरीन तारीख है, और इमामना जहाँ जहाँ सफ़र करे उस दौरान जो है ऑलमोस्ट इस्लामिक कंट्रीज थे, वो उस दौर के इस्लामिक वतन की शक्ल में थे, और अपने अपने हुकूमत, बीदर है, नगर है, बीजापुर भी उनमें से एक है। और बीजापुर में जब आए आप, तो वहाँ का जो जो भी थे यूसुफ आदिल शाह वगैरह, वो सब जो है मुतखिद थे इनके बाद के जो नस्ल थे, वो लोग वहाँ के जो ऐसे जिसके नफ्स शरारत को आ जाती थी, जैसे इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का फरमान है। किसी ने पूछा कि भाई यजीद पर लानत भेजना कैसा है, तो बोले पहले अपनी ज़ात पर, नफ्स पर लानत भेज, ताकि वो यजीद को यजीद बनाने वाली उसकी नफ्स थी। तो नफसी जो उलमा रहते हैं, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ये सब बातें, और आसान नहीं है किसी को ईमान के साथ जोड़ना, आसान नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से हिदायत होना पड़ता है। एक आलिम या कोई एक जहन बने हुआ है, वो कुरान पढ़े हुआ है 12 साल 25 साल, हदीस पढ़े, आप कुछ की एक मेहनत करने वाला ऑलरेडी फील्ड में है बंदा, उसके ईमान में किसी को एडिट करना, मॉडिफाइड करना या जोड़ना मामूली काम नहीं है, अल्लाह की तरफ से। सिर्फ हम अपनी नफ्स को नहीं सुधार सकते, हमारी नफ्स एक बात को आ गई तो जिद को आ जाती, तो वो तो ईमान है, वो हर नफ्स जो है जज्बात में आ जाती है ईमान को लिए, उतना इजीली एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। वो यूसुफ आदिल शाही कबूल लिया, उसके बाद जो थे वो लोग नहीं कबूले हुए थे। आप मान के चलो बीजापुर में 90% मैतेविया फैले हुए थे। तारीख है मेरे पास, कुछ कन्नड़ा में हिस्ट्री की किताबें भी हैं, और मैं जब डिग्री कर रहा था हिस्ट्री ये लैंग्वेज में जो है, वो भी किताबों में सबक भी था इसका लास्ट ईयर के। 5 लाख अशरफियाँ खुदा बाकी था बोलते हैं हुकूमत की तरफ से, जो अवाम जो हमारे कौम की थी, जो फौज की शक्ल में थी, बीजापुर में मौजूद थी। रिकॉर्ड है, लिटरेचर में है। 5 लाख अशरफियाँ या 5 लाख रुपये उस दौर के हुकूमत के जो रकम थी उस एंगल में, उसको माफ़ करके आप लोग चले गए वहाँ से। फितना जब होने के आसार दिखे, फसाद होने के आसार दिखे, और जब हमारे इमाम पर उंगलियां उठाए गए, वहाँ पे मुनाजरा हुआ बाकायदा, वहाँ पे सैयद मोहम्मद गाजी, जिनकी मज़ार मुबारक मेदनगी में है, हमारे गाँव से 50-60 किलोमीटर पे है, उनके ही वारिस हैं, तहसीन मियाँ हैं, शाहिद मियाँ हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे बुजुर्ग हैं कौम में, और हमारा सिलसिला भी उन्हीं से जाता। उन्होंने मुनाजरा लीड करे उस दौर में, और जवाब दिए माशाल्लाह, और आप 3 दिन की मुनाजरा हुआ और कामयाब हुए, और शर्मिंदा हुआ उस दौर के जो भी बैठे थे। अब और आप सब अब रिक्वेस्ट करते थे रुकने की बात करें, आप रुकने की बात करें, वहाँ के पूरे लोग आप जीत के जो है हुक्म दिए आप कि भाई यहाँ रुकना सही नहीं है, क्योंकि आपके ईमान और आपके इमाम इमामना आखिर ज़मा पर जो है उंगलियां उठाई गई हुई ये जगह बन गई, तो अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। इखलास का हुक्म दिए आप, तो उनके हुक्म से ही जैसे कि बीजापुर से निकल गए लोग, खिरगावल, मंड्या, चन्नपटना, उधर उस तरफ तमिलनाडु उधर फैल गए, इधर उन्नावर, डंडोटी, चितापुर, वाड़ी वगैरह, ये हैदराबाद की तरफ आ गए बहुत सारे लोग, ऐसा कौम फैल गई हमारी। ये पूरे तारीखी जो है वाक़यात हैं। उसके बाद वो हुकूमत कमज़ोर हो गई, क्योंकि ईमानदार तलवारें जो है थे हुकूमत में, फ़कीर भी जी। थे, फौजी भी थे, सब निकल गए। वो आसानी से हाँ। हैदर अली को मिल गई, हैदर अली को मिल गई आसानी से ये कौम, तो फिर उन्हें लीड करने हम्म लगा, उन्हें पावरफुल हो गया, ईमान जो है रोशन हुआ, वहाँ पे जज्बे में आ गया, हुकूमत करे समझो यहाँ से निकलने के बाद। हम्म ये लोग जलीलो हम्म ख़ार होके ख़त्म हो गए, बीजापुर जो है ख़त्म हो गया हम्म बाद में। हम्म। और और औरंगजेब के परवेज ताबे भाई, चले गए। एक और बात आप देखिए, एक और बात देखिए आप कि भाई जब आज हम भी देखते हैं। एक जी। मिनट बीजापुर की बात पूरी कर देता हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खबरें हैं, और केसेस चल रहे हैं हमारे कोर्ट में। बहुत सारे लोग कब्जा करे हुए हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग कब्जा करे हुए हैं। बहुत 11 हजीरे के मिनिमम पेपर्स जो ऑलरेडी केसेस ऑनगोइंग है, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ। और जी। जो है बहुत बड़ी जगह अभी भी है, खबरस्तान है, और कौम में जितने भी 99% बुजुर्गों के आला जद्दे आला जो है बीजापुर में हैं, ऑलमोस्ट कोई ना कोई उनसे ओहो। जुड़े हुए वहाँ पर हैं, अभी भी लिखे हुए हम्म तख्ती लगा के खबरें हैं माशाल्लाह। मस्जिद है, हम्म हम्म और हम्म सेंटर ऑफ द सिटी भी है, आउट ऑफ द सिटी भी है, हम्म। मज़ार सेंटर ऑफ द सिटी भी है, आउट ऑफ द ये सिटी भी है। बहामनी बहामनी जो सल्तनत थी उसका शायद राजधानी भी वगैरह वगैरह भी वहीं पे थी, शायद बीजापुर में ही थी। बहामनी की जो सल्तनत थी ना, जो बाद में 5 टुकड़ों में डिवाइड हुई, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इस तरह से रियासतें बाद में जो बनी है।
نہیں بہمنی کا جو گروپ جو ہے بیدر سے راج کرتے تھے یہ لوگ. ہاں بیدر سے. بیدر ہی جی کیپٹل تھا. اور امامانہ جب بیدر کو آئے تھے اس دوران جو ہے وہاں کے بادشاہ جو تھے ان کے خواب میں جو بشارت ہوئی وہ بشارت کو جو ہے آپ اپنے علماء میں اظہار کرے. پھر وہاں سے کچھ طالب مولا تھے ان کے اوپر جو ہے حق کا اظہار ہوا. سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہی زمانہ آخر زمانہ ہے اور جو آنے والی ذات ہے یہی مہدی موعود ہے. اور وہ لوگ تصدیق بھی کرے. وہاں کا بیدر کی بھی تاریخ میں اب دنیا ہمارے ایک غلط فہمی کیا پھیل گئی, ہم لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہو گئے 500 سال میں پورے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے ہو گئے اور ذکر خفی کے اوپر فوکس کرے اور اپنے دائرے بنا کو اپنی جگہ پر رہ گئے. دنیا کی آس نہیں کرے, جائیداداں نہیں بنائے, پاور کے پیچھے نہیں گئے, پالیٹکس کے پیچھے نہیں گئے, کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور معاملے میں فوکس کرنا پسند نہیں کرے. تو اس میں جی کیا ہو جی گیا شیعہ سے ہمارے مطلب ہمارے اپنے شیعہ آپ لوگ کو آئیں جوڑ یہ لیا بولے سر کا ہمیں. جی نہیں شیعہ لوگ آئیں بولے سر کا ہسٹرینس جو ہے مہدوی ہاں لکھنے کی ہاں جگہ الگ ہاں ورڈ استعمال ہم کو کرتے. شیعہ لکھ دیا گیا. ہاں ہاں ہاں. شیعہ لکھ دیا اور گیا بولو یا پرویز بھائی شیعہ ایک اور جیسا بات میں ایک اور امیج پوائنٹ پیدا رکھ دوں گا, ہوتا ایک اور پوائنٹ رکھ دوں گا کہ جس میں یہ کہ ہے. یہ جی لوگ سرفراز جو تھے سرفراز صاحب اور کفایت اللہ صاحب, ہم آپ بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں وہ عادت نہیں ہے آپ لوگوں کے جیسی کہ جو آپ لوگ بدتمیزی کریں ہم لوگوں میں نہیں ہے عادت. تو آپ لوگ بول رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں جگہ نہیں ملی, جبکہ ہم نے کہا ہے کہ بھائی جون پور کی سلطنت, احمد نگر کی, بیجاپور میں اتنے لوگ تھے. آپ لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہو, آپ لوگ بنا پڑھے کتابیں رکھ دے رہے ہو. کس طرح کی بات ہے یہ, کس طرح سے کی بات ہے یہ کس طرح سے جہالت آپ کر رہے ہو, پر تو جہالت آپ آپ کر رہے ہو سمجھنے پر چاہیے. تو آپ سمجھنے چاہیے. صحیح ہے. نہیں آپ کیا بولے اور ایک بار تھوڑا دوہرے تو اچھا لگا. جی ہم یہ کہہ رہے جی تھے ہم کہ یہ یہ لوگ کہہ کہہ رہے تھے کہ کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ نہیں ملی بولتے کہیں, یہ ان کے حساب سے یہ جو کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں جگہ نہیں ملی. تو ہم نے کہا کہ بھئی جون پور کی سلطنت, احمد نگر کی سلطنت, بیجاپور میں اتنے تھے. تو یہ کیا تھا, آپ نے پڑھے ہی نہیں یا بنا پڑھے حضرت آپ باتیں کر رہے ہوں. آپ دیکھیے گجرات میں جائیے کہ کتنے جاتے ہیں. جی اللہ کے فضل سے ایک 4-6 مہینے پہلے ہی لگ بھگ افغانستان سفر ہوا ماشاء اللہ ہمارا. وہاں کی تاریخ میں بھی ان کا ذکر ہے. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. نہیں دیکھیے آ رہی ہے آواز, آ رہی جی ہے جی آپ کو. بولیے بولیے. جی جی آ رہی ہے. الحمدللہ افغانستان کا سفر نصیب ہوا بھائی. وہاں پہ بھی تاریخ میں جو ہے افغانستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے جہاں کی زمین لے کر دفنایا گیا, جو بھی رکھا گیا حضرت کو امامانہ کو, اس جگہ پہ اونرشپ جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے نام پہ ریکارڈ میں تھا. وہ ہسٹری میں ہے, ابھی بھی ہے وہاں پہ, ابھی بھی اویلیبل ہے ریکارڈ. اگر آپ جو ہے ڈیپ میں جانیں تو اس کا بھائی وہ نہیں ہے. بھائی وہ پڑھتے نہیں نا, یہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے نا. نہیں یہ سب یہ چائنیز فوڈ کھا کے جو ہے یہ لوگ سب عالمہ بن کو بیٹھے ٹی وی پہ کو بیٹھے کیا کرتے کچھ نہیں کر سکتے. چائنیز فوڈ. چمچ ہے یہ سب. ہاں یہ سب 4 دن کا چمک ہے لوگوں کی. ایسے ہزاروں قومیں جو ہے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہم, ایسے کئی نمونے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے وجود میں باقاعدہ وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, شان کے ساتھ. الحمدللہ اللہ رکھے ہمارے. جی جی بولیے بولیے. آواز آ رہی ہے صاحب. ہاں آواز آ رہی ہے بولیے. جی نہیں قوم جو ہے میرا ماننا کلیئر ہے. دیکھیے میں جو ہے شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ بھائی اس مراد اللہ قوم میں ہمارے کو پیدا کرا, جو ہے ذات خدا کو دیکھنے کی بات کرتی, سمجھنے کی بات کرتی, جاننے کی بات کرتی. اندھی تکلیف تو یہاں سے شروع ہوتی. ذات خدا کو آپ دیکھنا, وہی جو ہے اس کے بعد جو بندگی ہے وہی بغیر اندھی تکلیف کی ہوتی. تو وہ بات ہمارے پاس ہے, وہ تعلیمات ہمارے پاس ہیں. اور یہ تعلیمات کیا آسمان سے دوسری چوتھے آسمان سے ایسے نہیں ہے, وہ بھی قرآن سے ہیں ماشاء اللہ. قرآن کو سمجھنے کے لیے صلاحیت ہونا, متقی ہونا ضروری ہے. اب یہ لوگ نہیں جان سکتے, سمجھا تو اور نہیں انہوں نے دور کی ایک بات بھی ہے خود نہیں تعلیمات سمجھتے. انہوں نے ایک بھی تعلیمات مہدی علیہ السلام نہیں رکھی. یہ بھی آپ دیکھیے, ایک بھی تعلیمات مہدی علیہ السلام انہوں نے نہیں رکھے. نہ ترک دنیا کے بارے میں بات کی, نہ ہجرت کے بارے میں بات کی, کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کی. شک و شبہ پیدا کر ہی نہیں سکتے تعلیمات کے اوپر, اس لیے وہ ایسی چیزوں کو اٹھاتے ہیں. اب جیسے پاک صاحب جسم چھوڑ کے مکھی کی طرف دھیان جانے والی فطرت کے لوگ ہی ہیں. مثلا اللہ رحم کرن دے, ہدایت دیں دے وہ لوگوں کو, ان کو دعا ہے بس میری. دین میں اخلاق ہے, رحم ہے, نرمی ہے,
लाज و लहाज है और तरीका है, इंसाफ की बात होती, बातचीत करे तो भी टाइम में इंसाफ देना, लोग जब बैठते अपने सामने उन्होंने भी इक्वल में रहना, और पोस्टर गलत नहीं चलाना एडवांस में, और ऑलरेडी फैसला करके आप फिर उसकी तहकीक कैसा करते, और गलत फहमियाँ नहीं फैलाना, मक्कारी नहीं रहना, चालाकी नहीं करना, और दीन का काम करने वाले, दीन की बात करने वाले झूठ का सहारा नहीं लेना। आप किसकी बात करें, उन लोगों को ये कुछ भी नहीं है। वही 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 तो अब वो इसलिए हमारे कौम से कोई जाते नहीं हो। अब मैं एक कासिब आदमी हूँ, पॉलिटिशियन आदमी हूँ, लीडर आदमी हूँ, तो मेरे को कोई ऐसे भेज दिए, आप जो है देखो हजरत ऐसी ऐसी बात है, ऐसा है, पटेल साहब बोल के भेज दिए। देखा मैं, फिर थोड़ा देखेंगे बोल को ऐसे ही सर्च करा था यूट्यूब पे, वो शायद इत्तेफाक उस दिन एक्चुअली हमारे अम्मी की बरसी भी थी, फुल बिजी डे हो पूरा दिन, जो है अचानक एंट्री मिल गई, तो जो भी अल्लाह फजल से जाहिर करना था कर दिया जो भी। जी जी इनके जी, पास बोलिए बोलिए। अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत की, अल्लाह की ज़ात से इश्क की, अल्लाह के ज़ात से सिकर, उसका खूबी पाक साफ, उसकी पाकी, उसकी आला दर्जा, उसका बनावट, उसके बारे में अल्लाह की ज़ात को लिए कोई भी बात नहीं करते, इन्हों खाली मखलूक के पीछे रहते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा, अब जैसे कि मैं हो समझाओ, मैं मेरे को हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई मैं खालिक की इबादत करूँ, खालिक की बंदगी करूँ, खालिक के ऊपर गौर व फिक्र करूँ, उसको अखले सलीम से समझूँ, उसकी इबादत करूँ, उसका दीदार के वास्ते तलब रखूँ, और उसका सुबह शाम जिक्र करूँ, और सही सच बोलूँ, हलाल खाऊँ, और किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे ऐसा ख्याल रखूँ अपने आप का, अपने कोई भी हरकत या अपनी कोई भी एज़ा से या कोई भी एक मामले से जो है तकलीफ़ ना हो, अपने आप को ऐसा पाक साफ रखूँ, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह का बंदा बन के जियो। हाँ, ये तालीम दीन की है, और ये तालीम को उन्हें समझने तैयार नहीं है, और इसके गलत डायरेक्शन में दीन का इस्तेमाल करते हैं। कैसा, बंदों के ऊपर तहकीक करना, बंदों के ऊपर गौर फिक्र करना, बंदों के ऊपर जो है टाइम अपना जर्फ करना, बंदों के चक्कर में रहना, बंदे क्या बोल रही देखना, बंदों की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा वो देखना, उम्मीद, रियाकारी, छोटा शिर्क बोले नहीं, रियाकारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जिक्र नहीं करते हो, और रियाकारी से पाके लोग हहीं बोल के कहीं भी दूर दूर तक दिखता नहीं। तो अल्लाह माफ़ करे दे, मेरा भी वक्त जाया हो गया ये लोगों के चक्कर में, मैं भी, मेरे को पसंद नहीं है ऐसा मखलूक के मामलात में, उन्होंने क्या बोल रही है, उन्होंने क्या सोच रही है, उन्होंने क्या कर रही है, उन्होंने क्या अरे कर रही है, ऐसा ठीक। वो कैसा हुआ परवेज भाई, पकड़बान मुसलमान वाली मामला है। पकड़बान मुसलमान जो बोलते हैं ना कि भाई इन लोगों को मतलब इस तरह से लग नहीं रहा था कि अदब इखलाक से बात करेंगे। बड़े इखलाकी इंसान अगर कोई भी जाए तो इखलाक से बात करता है, अगर कोई भी शख्स आए। और आप तो माशाल्लाह दाढ़ी के साथ और बेहतरीन लिबास में आप गए थे, तो आपसे तो बड़े एहतराम के साथ बात करनी चाहिए थी। नहीं, हमारे लेकिन इन हमारे लोगों को बड़े बड़े भाई एक जी बात बोल को ये है, आदमी जो है ज़बान से अपना दीन अदा करता, मगर वो सच नहीं रहता, जो उन्हें हरकतों से अदा करता देखो वही उसका दीन, जी उसकी हरकतें, उसका अमल जो ज़ाहिर करता, जैसे कि इसको आप जब आप ये लोगों के डिस्कशन में आप दलील की तरफ फोकस हमारा भी जा रहा देखो, जैसे कि इमामना फरमाए, इमामना की तस्दीक करना अमल करना है, वरना अमल जो है तस्दीक करना बेकार है, बोले कि इमामना बात करे सही है, आप जो बात कह रहे हो कोर करो, बात जी सही जी, है। तस्दीक बंदा अमल अस्त। और इमामना देखो कहीं भी इमामना की, आप मैं जो है इमामना के बारे में भी बात करना भी कहीं ना कहीं जो है दीन का हिस्सा है। इमामना की बात कर रहे हो जो मेरे जहन में चल रही है, इमामना को आप गौर करो, आप उनके बायोग्राफी को गौर करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी को गौर करो, उन्होंने किसके भी मामले में इंटरेस्टेड हो के हत्ती खाने में हत्ती क्या कर रही बिल्कुल फिक्र करे सो कहीं भी नहीं मिलता, और हमारे को जो है उनको फॉलो करना है, हमें वो नहीं कर रहे। ये हमारी फोकस करने के पॉइंट्स हैं कि भाई हम जो है अपनी ज़ात को फोकस करना, मेरी नज़र कहाँ है, मेरा सांस जो है बगैर अल्लाह के जिक्र के जारी आ रही ना, अल्लाह रिज़्क़ जब ले रही तो अल्लाह के नाम से ले, बिल्कुल क्लियर कट रसूलुल्लाह बोल को है। तो ये लोग रिज़्क़ बोले तो क्या समझे, जो निवाला उठाते वही रिज़्क़ समझे हो, मगर हमारे पास कौम महदिया की ये शान बोलो या ये एक एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर, इमामना का सदका है, जो है हम रिज़्क़ से मुराद सांस को भी लेते हैं, जो अंदर सांस जाती वो भी अल्लाह के नाम से जाना, और यहाँ तक कि और जैसे कि गैर खुदा का इनकार करना है ना, सांस जब बाहर छोड़ते तो इनकार भी करते हैं कि भाई ये ये बहुत गौर करने वालों को समझ में आती है, ज़िक्र खफ़ी की जो तालीम है, ये जो बात है, ये जो रिज़्क़ को अंदर लेते वक्त अल्लाह का नाम लेने की बात है, रसूलुल्लाह का हुक्म है ना, ये आप तो माशाल्लाह जानते हैं, बात सही है।
میاں یہ بات صحیح جی ہے. جی کیا بولے آپ نے؟ ریپیٹ کیجیے. رزق جب آپ لیں تو اللہ کے نام کے ساتھ لیں اندر. تو لوگ جی جو یہ لوگ جو ہیں خالی اس کے اوپر فوکس کرے کہ بھائی رزق وہ تو نوالا ہے, یہ بسم اللہ بول نہیں کو کھا لینا وہ بول کو تعلیم دے دی ہے. وہاں چلو پہ ٹھیک ہے, یہ وہاں بھی پر حد جو ہے نا تک ٹھیک ہے. مٹیریلسٹک چیزیں ہے پرویز بھائی, مٹیریلسٹک چیزیں وہاں پر آپ ہاں جو ہے آپ فنا فی اللہ کی بات ہی نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر مٹیریلسٹک ہے, سکتے. تصوف کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹلی. مٹیریلسٹک ورلڈ میں میں جینے کی بات کرتے ہیں. اب جیسے میں ان سے تصوف کسی نے ایک کوشچن کیا تھا پرویز بھائی, کسی نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ بھائی 1857 یعنی 1857 سے پہلے آپ کی مسجد دکھائی ہے, تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسجد ہے, وہ مسجد ہے, ہماری یہاں تھی وہاں تھی, یہ ایسا. انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھائی جو شروعات میں 1400 سال پہلے یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے جو مسجدیں تھی نا 80 ہجری سے جی پہلے, وہ ہماری مسجد تھی. ان کے ایک مولوی نے بولے تھے کہ 80 ہجری سے پہلے. مطلب کیا لاجک ہے اس میں, کیا بات میں لاجک ہے؟ آپ لوگ اپنی تو بات رکھیے نا, آپ لوگ ہماری بات کر رہے ہیں نا, تو آپ اپنی رکھیے پہلے. اب ہم کو تو غلط بول رہے ہیں آپ, پہلے اپنی تو بات کلیئر کیجیے کہ آپ لوگ کہاں سے صحیح ہے. ہمارے کو تو بات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ اپنے آپ پر. آپ اپنے آپ پر تو کریے, پھر دیکھتے ہیں نا کتنے آپ لوگ سمجھدار ہیں. میاں ایک بات کلیئر ہے, قرآن جیسا کہ ہمارے کو تعلیم قرآن میں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ بول کو ہے جب جاہلوں سے سامنے نہ ہو تو سلام کے ساتھ کنارہ کر لو. تو یہ ایٹ دی اینڈ یہ بیسٹ پوائنٹ ہے. ایٹ دی اینڈ یہ بیسٹ پوائنٹ ہے. یہ لوگوں کا نام گفتگو کرنا جو ہمارے مرشدین کرام کا جو عمل ہے واقع حق ہے, سچ ہے. جی کیونکہ یہ لوگ جو جی ہے اس کے اوپر ذکر نہیں کرتے, لئیو نہیں آتے, بولتے نہیں. انہوں کیا ہے, اب پاگل کتا بھوک رہا تو اس کا جواب کون دینا بولا, انسان جی کی شکل میں ہے وہ, اب وہ کتا جی بھوک رہا تو اس کا جواب کون دینا, وہ نہیں دیتے جی ہو. اب ہمارا جی جو ہے وہ اتفاقاً ہو گیا. اور میں آج کل انہوں کب تک بات کرنے تیار ہے, میں بھی بات کرنے تیار ہوں, مسئلہ نہیں ہے جی میرے کو. کیونکہ میں جی کاشی بدمی ہوں, جی لیڈر آدمی ہوں, اور پبلک لائف میں ہوں. ماشاء اللہ دنیا آپ کی جو اخلاق ہے اس کو دیکھ رہی ہے. آپ کی جو اخلاقیات کے ساتھ آپ نے نہیں بات رکھی, اور ماشاء اللہ آج. نہیں یہ مرشد جو ہیں ہمارے یا قوم کے جس کے بھی مرشد ہیں, پورے اہل بیت سے وابستگی ہے ان کی ڈائریکٹ. جی جی جی. کچھ اثر ان کے اندر رہتا چلتا. آج کے دور میں یہ جو اور ہائیبریڈ پرویز بھائی, مرغیاں آپ ہیں. نے وہ ٹولی چوکی کا آدمی دیکھے حیدرآباد سے بات کر رہا تھا, اور ٹولی چوکی کا وہ ان لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے ضرب والے ہیں, بندہ اہل ضرب ہے آپ لوگ. مطلب کیا ضرب کیا ضرب, مطلب کیا احترام دیکھ لیا ان لوگوں کی, ان کی بات کرنے میں وہ لہجہ نظر نہیں آ رہا, اور کہاں کی وہ ہے تمیز ہے. اہل ضرب ہے, نہیں یہ ہے. آپ یہ دیکھے ٹولی چوکی کا وہ شخص. حضرت آپ سے میری ایج یہ ان کے اوپر ہمیں ذکر ہی نہیں کرنا. ہمارے کو تو ذکر مہدی موت کا کریں گے, قوم کا اپنی کریں گے, اپنے مرشدین جی کا جی کریں گے. جی ہمارے جی مرشدین کا ذکر کرنا بھی دین کا حصہ ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں, ہاں وہ کیونکہ مرشدین جو ہے اہل بیت سے ہیں. اہل بیت سے ایک ہی خوبی نہیں ہے مرشدین کے پاس. ان جی کے پاس جو ہے آپ لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ, جو حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ بات کر رہا ہے نا, تو اس کی میں جی بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو شخص ہے نا, وہ جو شخص ہوتا ہے نا, وہ لوگوں میں خود وہ نہیں ہوتی, وہ لوگوں کی سچائی خود ان کی زبانوں پہ نہیں ہوتی. تمیز جو ہوتی ہے نا, جب تمیز کی بات آتی ہے نا, تو وہ لوگوں کی تمیزیں کہاں چلی جاتی ہے پتہ نہیں. تمیز کی بات اگر وہ رکھتے تمیز سے تو الگ بات ہوتی, لیکن انہوں نے تمیز سے ہی نہیں بتا دی کہ وہ لوگ غلط ہیں. نہیں, یہ لوگ جو ہے پورے نفس امارہ کے سٹیج میں رہتے ہیں. ان کے ذہن میں, ان کے قریب میں 3 اس کے سٹیجز ہیں نفس کے, ان کو معلوم نہیں ہے. جی اور یہ مطمئن جو والی سٹیج ہے نفس کی, اس کو یہ لوگ پہنچتے نہیں. اور اس کو یہ لوگوں کے پاس اس کا تصور بھی نہیں ہے. ان کے پورے قبیلے میں, ان کے پورے گروپ میں نہ اگر کوئی معتبر بھی رہا, میڈیم والے میں بھی رہا, نفس لوامہ میں بھی رہا, سیکنڈ سٹیج میں رہا, تو یہ لوگوں کی صحبت میں آ گیا تو انہیں پھر نفس امارہ کی طرف چلے جاتا. اب جیسے کہ سمجھو آپ, میں بھی اگر یہ لوگوں کے بارے میں زیادہ بات کرے یا ان کے طرف زیادہ فوکس کرے اپنے جی ذہن جی کو, تو ہمیں جی بھی جو ہے شرارت کی طرف چلے جاتے. یہ اتنی کھجلی کا پتہ بولتے نہیں موٹی زبان میں, ہمارے پاس جی گاؤں میں بولتے کھجلی کا پتہ بول. تو کتنا آپ لگا جی دیں اتنا کھجا لیتے بیٹھنا پڑتا. میں اس کو بولیوں, آج مینیجر سے بات ہوئی چینل کے, اس کو بولیوں آپ لوگ کھجلی کا پتہ ہے, مگر پھر بھی میں آ رہا ہوں, پھر بھی بات کریں گے. آپ 2 مینیجر بار یہ آئی پلس والے کا مینیجر. ہاں وہ کمپلینٹ وغیرہ کیا ہوں تو سائبر کرائم میں 1 ہفتہ ہو گیا. اس کی کاروائی چل رہی تھی, وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا, تو پھر اس کے بعد سے لگایا فون, بات کر کی ایسے اس کو بھی سنا ہی ہو. وہ بندہ بڑا سیدھا ہے, وہ یہ لوگوں کے سر کا ایکٹر نہیں ہے, ایکٹر نہیں ہے, وہ سیدھا ہے آدمی, سیدھا ہے. اس کو بات نہیں وہ بھی سمجھ سیدھا نہیں میں ہے, وہ بھی نہیں. بھروسے آپ نہیں جانتے, پھر وہ کوئی سیدھا نہیں رہتی, کوئی وہ صرف دکھاوے کے لیے ہو سیدھی. سکتا, ہاں ہو سکتا جو اخلاق یہ لوگ بتائے بڑے اسٹریم پہ, ان کے مقابلے میں انہیں سیدھا ہے.
इतना बोल सकते नहीं हैं उनके मुकाबले में। वो भी असलियत बता देता वो, मतलब कि गिरगिट की जगह रंग बदलते हैं। नहीं मतलब फिर भी अब जो हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ, वो लोग जो थे जी। जैसे चार, ये जो बंदा है वो चारों से बेहतर है देखो। हाँ हाँ दीन से जोड़ने का नको, सही गलत डिसाइड करने का नको। उन्हों हाँ जो हाँ। दिखे वजनदार, जो भी उन्होंने हल्के वजन जो भी दिख रहे थे, जो भी उन्होंने 10-10 ग्राम के थे, तो इन्हें 11 ग्राम का है। हम्म। नहीं लेकिन वो कैसा होता है, जब उनको जानते हो ना तो पता चलता है कि वो सबके सब ऐसे ही है करके। मेरा हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी सही समय बात, से इनको जानते हैं हम, तो इस वजह से हम बोल रहे सही, हैं। सही जी जी बात, बिल्कुल सही जी। बोले, सही बोले, सही तो बोले। माशाल्लाह आज की स्ट्रीम खौफ स्ट्रीम जो है बहुत खौफ जरूरी थी परवेज भाई। बिल्कुल बिल्कुल होम में जो है हमारा ग्रो जो इसको है, ग्रो महदविया में ये चीजें जरूरी है कि अगर आपको बात रखनी है, जो भी जज्बात रखने हैं अपने स्ट्रीम में आइए, यहाँ पर माशाल्लाह आपको इजाजत है जो भी बोलने की। और हम तो अभी बिल्कुल मोबाइल से कनेक्टेड है, अभी इंशाल्लाह कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर जिसके पास है वो अगर चैनल बनाए तो बेहतर रहेगा और ज्यादा, तो हमारे पास नहीं मोबाइल है तो बनाने, ज्यादा जी मेरा मानना है जो इमामना तालीम दे के हैं, जो अब जैसे कि मैं दूसरे भी चीज़ों में, दूसरे भी तालीमात, दूसरे भी बातों के ऊपर भी स्टडी किया हूँ, कन्नड़ा मीडियम से वगैरह, जो भी स्टडीज़ हैं अब तक के मेरे, शॉर्ट शार्ट अगर इमामना अलैहिस्सलाम के नखल भी अगर हम सही तरीके से जो है स्ट्रीम पे डिस्कस करें, तो ये स्ट्रीम के ज़रिए भी हम अल्लाह ताला को आप याद देखिए कर परवेज भाई, सकते एक हमारे हैं। और हमारे एक एक शख्स थे, मैसेज उन्होंने जी एक मैसेज दे दे जी सकते बोलिए। एक मैसेज दे दे सकते हैं पूरी दुनिया को या कौम को, कि भाई हमारे पास सिर्फ अल्लाह अल्लाह है। अजान, नमाज, सब चीज़ें अल्लाह अल्लाह है। अब हर बात के लिए अल्लाह, इमाम ने क्या फरमाए, काम जो जी कर रहे हैं आप उसको गौर करो, वो अल्लाह वास्ते है तो बेहतर है, वरना बेकार है। जी समंदर को खतरे में पेश करे ना, जी सिंपल सा काम है कि भाई आप जी गौर करो, काम पे गौर करो, अगर अल्लाह वास्ते है तो बेहतर है, वरना बेकार है। वो जी 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 जो शय, जो अमल, जो चीज़ हमें खुदा से जोड़े वो जो है बेहतर है, और जो खुदा से जी दूर करे वो बेकार है। जी। बेअदब जो है दीन की मुराद को नहीं पहुंच सकता, बेहया नहीं पहुंच सकता, बेशरम नहीं अगर पहुंच सकता, आप बदजुबान नहीं पहुंच सकता। तालीमात महदी अल इस्लामी इस चैनल पे अभी मैं अगर बताने लग जाऊं तो जो सुनने वाले सामीन है वो मतलब कि ताजुब करेंगे कि इस तरह की तालीमात जो है वो मतलब कि कोई आम शख्सियत नहीं दे सकती, वो खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम ही दे सकते हैं। इस तरह की तालीमात है मेहदी अलैहिस्सलाम की। अगर आप गुजरात को जाके देखें और जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम गए हैं वहां जाके देखें तो आपको लगता है कि भाई यहाँ वाकई में दुनिया नहीं है करके। अगर आप गुजरात में अगर जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के खलीफे हैं वहां जाके देखे, आप बंदगी मियाँ के पास जाके देखे ना, तो आप वहां पे जो नदी है ना, इतनी चौड़ी नदी है, वो इतनी बड़ी नदी है, आप हैरत करते हैं कि मतलब क्या मोहब्बत रही होंगी हुजूर हुजूर मेहदी मौऊद इस्लाम की बंदगी मियाँ के दिल में। तो ये चीजें हैं कि भाई बंदगी मियाँ ये से ईमान, मोहब्बत। जी ईमान वालों के वास्ते है मियाँ। जी। जालिकल जिसके किताबुल पास, आ रही हाँ, थी हुदल लिल जिसके पास, मुत्तकीन। हाँ, जो मुत्तकी हैं, जो ईमान वाले हैं, जो हलाल खोर हैं, उनके वास्ते है मियाँ। जो बग्स पालते, देखो अहले बैत को लेकर जो बग्स पाल लेते हैं, वो चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, उनका जी जी जी। ब्लड ब्लड जो नाजबियत है, नाजबियत की हाँ, बात कर रहे हैं आपकी, जो बीबी नाजबी। फातिमा तक, बीबी फातिमा तक जा रहा, वो तो यही एक बात पे उनका अदब लागू हो गया, हाँ लाजिम हो गया। मैं वही बोला हूँ, मैं उस स्ट्रीम में यही बोला हूँ कि इमाम मूसा काजिम के वालिद जो है इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर के वालिद इमाम जैनुल आबिदीन, और इमाम जैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको यजीद ने शहीद किया था। ये लोग यजीद जैसे शख्स की वो करते तारीफ, रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा वो अच्छा शख्स था, उसकी बात करें। यानी आप देखिए कि जो अहले बैत का दुश्मन था, अहले बैत को जिसने कत्ल किया, शहीद किया, उसकी बात कर रहे हैं, और बाद में बात क्या कर रहे हैं, इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं। ये तो ये नहीं मानते कि कातिल इमाम हुसैन का कातिल यजीद था, और वो बात कर रहे हैं कि भाई इमाम हुसैन के खानदान की बात कर रहे हैं और वगैरह वगैरह बात कर नहीं, उसको पहले एक सवाल किया मैं, वो जवाब नहीं दे सके आप, उसको स्किप कर दिया आप गौर करें आप मैं पूछ रहा हूँ उनको, ये जी जो कर रहे हैं आप, ये कहाँ से साबित है, उनको पूछ रहा हूँ, हवाला पूछ रहा हूँ, तो नहीं दिया उन्हें, स्किप जी। कर को आप महीने भी हैं क्या, बल्कि हमारे को मैनिपुलेट कर दिया, चलो ठीक है, नहीं बोला ऐसे ही मेरे को होता है, समझ ऐसे में ही आ होता गई है, बात। प्रोपेगेंडे का मतलब ये होता है। हाँ, सेकंड जो है, अब उसूल क्या है दीन की बात जब कर रहे हैं, तो उनको एक सवाल करने का मौका देना, इनको एक सवाल करने का मौका देना। तो वो बंदा जो मेंटेन कर रहा, उन्हें भी जो है मेंटेन सही नहीं कर रहा, सब मिली भगत में है, जज भी उनका, वकील भी उनका, ठीक है, हमारे को मसला नहीं है, सब गुनों रहते भी मसला नहीं है, हक जो रहता नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्या भी फर्क पड़ने वाला नहीं, गालिब तो हक ही जी चाहता सही। होगा वो वापस। जी तो जी
वो उन्होंने समझ रहे इससे हम नुकसान कर रहे, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी कौम एक ऐसी है इंडिया में जो 500 साल से दावा कर रही कि भाई जो रसूलुल्लाह का वायदा था वो पूरा हो गया, आए भी गए जी फिर आने वाले नहीं है, ये क्लियर जी मैसेज जा रहा सब तरफ। उसके वास्ते तो आई जी प्लस वाले को उनके हाफिज सुजा को शुक्रिया बोलने का है। इंशाल्लाह मैं बात कर रही हूँ आज उसके मैनेजर से, बहुत जल्द आता हूँ नहीं, वो डर आपको रहे जो हैं है। आपसे, वो डर रहे हैं आपसे, आपको उन्होंने जगह बताया नहीं, एड्रेस नहीं बताया उन लोगों में, वो हिम्मत नहीं है। सही हो सकता डर रहे होंगे, मगर डर का क्या है, देखो तांबे का सिर लेको तो पैदा हुए नहीं, ये तो तय है, जी ये तो क्लियर है। और जी ईमान वाले मुत्तकी लोग जो है सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, सिवाय अल्लाह की हम्म कोई शय का डर नहीं रहता। हम्म और मेरा मानना ये भी है कि भाई तुम डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भटक गए जैसा हो गया, गुमराह हो गए समझो। अल्लाह के अलावा किसी शय जी को डर रहे हैं आप तो सीधा सीधा जी भटक जी। गए। अल्लाह और ताला का आपने वो किफायतुल्लाह साहब की बातों की तरीका देखा है कि मतलब आप देखिए किस तरह की वो उस शख्स का तरीका बात करने का, लहजा नहीं है, मतलब किस तरह से बात कर रहे हैं वो शख्स, ये मतलब क्या है, मतलब आप थोड़ा तमीज तमीज तहजीब नहीं, मतलब तमीज तहजीब से ही आप दिखा दे रहे हैं अपना किरदार, हाँ तमीज किस हाँ तरह हाँ। से आप बात कर रहे हैं जी। तो ऐसी बात है, नहीं इंशाल्लाह 46 मिनट हो चुके हैं, पर इस पे मेरा इंशाल्लाह चार मेरा मिनट हम लोग रिक्वेस्ट बात है, करते थे। मेरा रिक्वेस्ट है ये लोगों के बारे में स्ट्रीम में आइंदा नहीं बात करना क्या भी, क्योंकि नहीं करना, क्यों नहीं करना, हम जिक्र जी जिसका करते हैं वो बढ़ते जाता है। हम जी जी जो है माशाल्लाह, सही बात आइंदा है, सही स्ट्रीम, बात। हाँ हम जो है हमारी एनर्जी ये ये जो कचरा है उस पर वो नहीं खर्च करेंगे, हमें जो सोना है उस जी पर खर्च करेंगे। सोने की जी खूबी जी। क्या है, कितना घसते हैं उतना लेकिन चमक ज्यादा अब, होती है। अभी फिलहाल मैं इसलिए बात रख रहा था कि भाई आप देखिए कि भाई प्रोपेगेंडा किस तरह से हो रहा है कि भाई गलत वो कर रहे हैं, कज़ाबियत कर रहे हैं, हम पर गुरोह मेहदिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कज़ाबियत का, कि असल में कज़ाबियत कज़ाब वगैरह चीजें उल्टा ये कर रहे थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बोले सर। जी 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 नहीं उन्होंने उन्होंने समझ रहे बात, देखिए बदजुबानी, तोहमत लगाना, मक्कारी करना, चालाकी करना, झूठ का सहारा लेना, ये कोई भी दीनदार नहीं करे आज तक, वो लोग ये सब कर रहे। उससे उनको समझा तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मौका मिला तो, अल्लाह जी कुछ जी हाजिर नाजिर इंशाल्लाह, जान अल्लाह तो अल्लाह 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 हिदायत कामयाब मेरा करें मैं, आपको। हाँ मैं जबरदस्ती थोड़ी उनके ऊपर गाली बाकी नहीं बोल सकता, अपने अखलाक से जितनी बात रखना है रख दे, तो वो अल्लाह हिदायत जी करने वाला है। छोटी जी छोटे झूठ का सहारा नहीं लेना। हाँ हाँ वो उन्होंने कुछ नंबर से कॉल भी दे रहे हो मेरे को बात करने के वास्ते, वो एक एक घंटा बात कर रहे हो मेरे से फोन पे, 8 दिन में करे ऑलरेडी, अलग माशाल्लाह अलग एंगल माशाल्लाह। पे। हाँ, बात करे, मैं उनको क्लियर समझे, मेरे को जो मुर्शिद की सोहबत में, मुर्शिद के खिदमत में जो इल्म अल्लाह नसीब करे से उनके खदमों में, वो उसके तहत जो है 2 4 6 घंटे भी मैं बात कर सकता हूँ, मेरे को कोई मसला नहीं है जी जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरे से कोई भी कांटेक्ट कहीं भी कर सकता, मैं किसी से जी माशाल्लाह। एक स्किप करने वाला बंदा नहीं हूँ इंशाल्लाह। जी जी जी। अब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, इंशाल्लाह हम 2 मिनट के बाद इस स्ट्रीम को एंडिंग पे लाते हैं। और माशाल्लाह आज की स्ट्रीम बहुत अच्छी हुई। हमने अम्माद भाई को भी बोले थे आने का, लेकिन वो बिजी थे। तो इंशाल्लाह नहीं अगर रहा अगले हफ्ते या कभी रहा मौका आया तो यहाँ पे इंशाल्लाह बात रखेंगे अपनी, नहीं और आपकी ये तालीमात मेहदी खिदमत, इस्लाम। आपकी ये खिदमत जारी रहने दें, बिल्कुल जारी रहने दें, अल्लाह इसको कामयाब करन दे और इससे लोग अल्लाह की तरफ जाने वाले बनन दे, ये बातें गुफ्तगू सुनने के बाद में अल्लाह की ज़ात जी की तरफ जाने वाले बनन दे, ये हमारी नियत मकसद है, दुआ है अल्लाह जी। से, अल्लाह जो है कबूल एक करे। शेर रख देंगे हम, एक शेर रख देंगे आखिर में इंशाल्लाह, आखिर में, कि जी चकडाल जी माल तन को कौड़ी न रख कफन को, जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। ये हमारे मुर्शिद दादा हजरत का शेर था, कि आपने उस जिंदगी में अपनाई भी, कि जगढाल माल तन को कौड़ी न रख कफन, जिसने दिया जी है तन को वही देगा कफन को। तो ये सही। तालीमात हमारे मुर्शिदीन की रही है, हमारे बुजुर्गान दीन की रही है, कि भाई जब कुछ भी पूरे नहीं रहता था, जब भी पूरे अल्लाह के भरोसे रहते थे। नहीं ये लोग आप ईशा के बाद में दीन की बात का टाइम जो प्राइम टाइम रखे हुए हैं, ये टाइमिंग गलत है। देखो रसूलुल्लाह का तरीका क्या था, बाद ईशा के जी रेस्ट करते थे, आप सो जाते थे, जी मखलूक से परहेज जी करें आप, बहुत जी इमरजेंसी रहा तो जो है अटेंड करें। हाँ, जी। यही समझ में आता, टाइमिंग गलत, तरीका गलत, अंदाज गलत, बात गलत, बातचीत बोले गलत, उनको उनको अल्लाह। उनको जो बेचारे भोले भाले लोग समझ रहे हैं कि भाई इनके नामों में क्या ये इस्लामिक नाम है, तो उस वजह से बेचारे भोले भाले लोग हैं। हमको तो समझ में आ रहा है कि भैया किस तरह से आप लोग नहीं हरकतें कर रहे हैं करके। 20 25 100 200 व्यवस्था में ये सब डिस्कस कर ले को चांस मारना बोल को कर रहे कोशिश, 2 4 दिन 8 दिन हाँ बताओ, बाद में जी सब जी अपनी जगह ले लेती बात, हक रिच गालिब रहने का हमेशा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई। बेशक मेहदी मौद आए और गए, फिर आने वाले नहीं है। इन्नल मेहदी अल मौत कद जाओ मजा। नल मेहदी अल मौत खत जाओ मजा। क्या है जी मियाँ, जी थोड़ा शुक्रिया। आसानी से दीन समझाने के वास्ते मैं थोड़ा एक वर्ड यूज करता हूँ, वो जी 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 ओरिजिनल माशाल्लाह जो है माशाल्लाह। आती माशाल्लाह आती वो भी, मगर बेहतर होता, मेरे को ऐसा फील होता था आसानी से हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छा सुनने है ना, वालों को अच्छा पढ़ है सकता हूँ जी बोल के। जी 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 शुक्रिया परवेज भाई आपका आने का। जी जी बहुत शुक्रिया जी हजरत, आप अलग टाइम जी दिए जी अपना। खुदा हाफिज। शुक्रिया जी जी जी, खुदा।